Okay, let's start the next biasing method. In the previous class, we discussed the fixed biasing method, where we had only one resistor in the base terminal and one in the collector terminal, and a common supply was provided. Here we have one extra resistance also in the emitter terminal, right here. Rest of the things are same. We will apply the input signal, and that will be first passed through a capacitor C1 to block any DC content that is present in the AC input. So input signal will be applied to the base and emitter region. Output will be taken from the collector to emitter region. And for the same reason, we will use one capacitor also to block any DC content to go to the output. Okay, the VCC supply will be applied to the base via resistor RB and to the collector via resistor R. And this is an NPN transistor. So with using the notation, we can simply write down the directions of the current. So base current will be flowing to the transistor, collector current will flow into the transistor, emitter current will flow outside the transistor. Here also we will use the same method that we use in the fixed biasing method. We will divide the circuit in two parts, first for the input terminals and then for the output terminals. So for input, we will consider this loop from VCC to resistor RB to the base emitter region and then to the emitter resistor and then to the ground. This we will consider for the input region, and for output region we will consider VCC, collector resistance RC, collector emitter region, and then emitter region along with emitter resistance R. So let's discuss these two sides one by one. So this is, let's first discuss the input side circuit. So this is the simply rearrangement of the VCC supply that has been connected to the base resistance via the using like this, and we have just completed the loop because emitter resistance was also connected to the ground. Now we will apply the KVL in this particular loop. ठीक है, तब KVL अप्लाई कर सकते हो. So plus VCC minus IBRB. Here also we will have the effect of VBE and then an additional factor of IERE. So this factor was not present in the fixed biasing method. Rest of the equation is same. Okay, this is for the input supply. Voltage drop across the base resistance, voltage drop across the emitter resistance, and one potential drop from base to emitter region, that is of 0.7 volt. Okay, now in this equation there are two, VBE is generally constant 0.7 volt, VCC is power supply given, base resistance and emitter resistance are also provided. There are two variables, base current and emitter current. So we can change that to one variable using this particular formula. IE equal to beta plus 1 times IB, जो कि हमारा सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है IE equal to IB plus IC, उसी से आया है. उसमें अगर हम IC की जगह बीटा टाइम्स IB रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ IE इन दिस इक्वेशन, we will get this equation. All right, now rearranging these values, we want to calculate the value of IB. तो IB पैरामीटर को हम एक तरफ रखेंगे, जो जो उसके साथ वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, and in the end we reach to this particular equation. ठीक है, if you can recall, फिक्स्ड बायसिंग में हमारे IB की जो वैल्यू थी उसमें हमारे ये तीनों पैरामीटर्स थे, VCC, VBE and RB.
RE अगर आप 0 कर दो तो वो ये सेम इक्वेशन आपकी वहां पे काम आ जाएगी। ठीक है, देयर इज वन एडिशनल फैक्टर बीटा प्लस 1 टाइम्स RE that is present in the denominator of the equation of the base current. Rest of the things are same. You can understand it like this, that the total power supply was VCC. There was some potential drop across the base current, base resistors. Then there will be some drop across the emitter resistor, and there will be factor of VB. Rearrange the parameters in the equation and reach to this particular formula. Now let's understand the significance of this beta plus 1 times RE. If you can see in the circuit, there are two resistances RB and RE. RB is के साथ में कोई भी अलग से पैरामीटर हमने नहीं लगाया है, वो एज इट इज आपकी इक्वेशन में अवेलेबल है। लेकिन RE जो है वो RE के बजाय बीटा प्लस 1 टाइम्स RE आ रहा है। दैट मीन्स RE is playing a bigger role if we consider the input side circuit. अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड एक सिंपल सर्किट बनाना चाहें विदाउट ट्रांजिस्टर, तो हम ये वाला सर्किट बना सकते हैं। There are two resistors, RB, and another resistor is beta plus 1 times RE, and there are two supplies, VCC and VB. If we will apply the KVL here, if we try to calculate the value of IB from this particular circuit, it will be this particular equation. Okay, so if we look at this, we can say that the effect of RE is beta plus 1 times the effect of emitter resistance in the input circuit. It is more effective by a factor of beta plus 1 times, where beta is your current gain. ठीक है, हमने यहाँ पे बीटा प्लस 1 नहीं लगाया था, हमने सिर्फ RE लगाया था, बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो इनपुट साइड में हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है. दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. If we look at from the input side, then this resistance will not look like emitter resistance. It will be looked as beta plus 1 times R. That's the exact effect of this particular resistance. Okay, and this has happened due to the action of the transistor. Okay, anyone, any doubt in derivation of this particular equation? Calculation of base current in the base emitter loop for emitter stabilized biasing. Okay, now let's move on to the output side. So this is the output side. The same one resistance in collector terminal, one in emitter terminal, and both are joined with power supply VCC. We will apply the KVL here also. तो यहाँ पे भी आप हम सेम इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं. That the total power supply VCC will be a combination of potential drop in the collector resistance and potential drop in emitter resistance and collector to emitter voltage. इन तीनों को आप एक साथ रखो, दूसरे को उस तरफ ले जाओ, तो सेम चीज बनती है. ठीक है, so this is the first equation, KVL equation for the output. Now what we can do, we know that the emitter current is nearly equal to the collector current. The difference is in the microampere. Okay, so we will simply replace the IE with IC. यहाँ पे जो हमने IE था उसको IC से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और दोनों में से हमने IC को कॉमन निकाल दिया. ठीक है, and from there just rearranging the parameters, rearranging different variables, we have reached to this equation using which we can calculate the value of collector to emitter voltage VCE.
अगर हम फिक्स बायसिंग की बात करें तो उसमें आर ई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वो आपकी सेम इक्वेशन बन जाएगी, उसमें भी आपका सेम यही था, VCE is equal to VCC minus ICRC. That was the value of VCE for fixed biasing circuit. Here we have extra resistance in emitter, so one factor also there. This is how we can calculate the value of VCE. Now in fixed biasing circuit, VE was equal to 0 because there was no voltage connected to it. It was directly connected to the ground. But here we have one resistance. So the potential drop at this particular point, that is VE, that will be simply IE times RE. अगर हम एमीटर के ऊपर पोटेंशियल देखेंगे तो ठीक है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो दैट्स व्हाई वो आप पावर सप्लाई जो उसकी पोलैरिटी है वो हम देख सकते हैं। अगर वो उस तरफ जा रही होगी तो उसको हम माइनस साइन में ले लेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग द सेम नोटेशन कि VCE is equal to VC minus VE, just put the value of VE and VCE and you will be able to calculate the value of collector voltage VC. In fixed biasing, it was simply equal to VCE because VE was 0. ठीक है, VC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे VCE की ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो हमारा ये वाला भी बन जाएगा। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस आप कैसे समझ सकते हो कि VCC आपके जो ड्रॉप था उसमें से ICRC ड्रॉप जो है वो ऊपर चला जाएगा, रेस्ट विल अपीयर अक्रॉस दी कलेक्टर। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर है और ये एमिटर है। तो VCC में से अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस घटा देंगे, we will get the value of VC. Using same method, we can calculate the value of VB. VB हमारा होता है VBE plus VE. ठीक है, उसमें हम वो वाले मेथड यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था RB और यहाँ पे सप्लाई थी VBB, सॉरी VC. So VCC minus potential drop across the base resistance, that will give us the value of VB. And similarly, VCC minus potential drop across this will give us the value of VC. सेम मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो माइनस करोगे सिंपली तो वो प्लस में आपका IE RE आ जाएगा। So that's how we calculate all the parameters. Start with the input side, calculate the value of base current IB, multiply it with the vector beta, calculate the value of IC. Now using this equation, calculate the value of VCE, and from there on keep on calculating the remaining unknown parameters. Okay, anyone, any doubts till now? No doubt? Okay, then let's move on. To the load line analysis. तो लोड लाइन एनालिसिस में हम जैसे फिक्स्ड बायसिंग में किया था, वी राइट द इनपुट इक्वेशन, सर्किट इक्वेशन फॉर द आउटपुट सर्किट। तो आउटपुट सर्किट के लिए हमारी ये वाली इक्वेशन थी, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC प्लस RE। तो सेम मेथड, एक बार आप IC की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर लीजिए। IC की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, VCE विल बी इक्वल टू VCC, तो आपका ये वाला पॉइंट मिल जाएगा।
एक बार सेम इक्वेशन में हम VCE की वैल्यू 0 रख लेते हैं। At VCE equal to 0, IC will be equal to VCC upon RC plus RE। अगर हम बात करें फिक्स्ड बायसिंग के साथ कंपैरिजन की, तो उसमें ये वाली जो हमारी वैल्यू थी वो सेम थी, और इस वाली वैल्यू में हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे, VCC डिवाइडेड बाई R। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट निकाल लिया, और इक्वेशन ऑफ लाइन में दो पॉइंट अगर आपको मिल जाए देन यू कैन ड्रॉ द लाइन। तो हमने ज्वाइन किया, और दिस पर्टिकुलर ICQ के लिए हमारा, सॉरी यहाँ पे ये IBQ आएगा, आई नॉट ICQ। इस पर्टिकुलर बेस करंट के लिए हमें चाहिए वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ Q पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपका एमिटर बायसिंग है देन दी टू एंड पॉइंट्स विल बी VCC, 0, another the second point will be 0, this value। Intersection of this particular line with the selected base current graph will give us the value of Q point। और जैसा फिक्स्ड बायसिंग में हमारा Q point मूव करता था by with the change in the value of the base current, सेम हमारा इसके अंदर भी करेगा। If we increase the value of the base current, then our Q point will move upward along the load line। ठीक है, उसके बाद हमने दो इफेक्ट और स्टडी किए थे, इफ वी इंक्रीज द कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड इफ वी इंक्रीज द VCC। तो उसके में भी हमारा उन दोनों केस में क्या रहेगा, इस कर्व के ऊपर आपका मूव करेगा विद द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड एमिटर रेजिस्टेंस। So that's how the Q point moves along the load line if we change the base current, and along the IB curve if we keep constant IB but change the value of VCC or RC। ठीक है, anyone any doubt? No doubt। चलो then let's do one numerical on this। आप लोग कीजिए साथ साथ। For the emitter bias network of this figure, determine these particular values। इसमें ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो इसमें आप कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले आप IB निकाल लीजिए। IB is equal to what? VCC, that is 20, minus VBE 0.7। Let me write it again here। VCC minus VBE divided by RB plus बीटा प्लस 1 टाइम्स R। यही फॉर्मूला था, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 20 माइनस 0.7, 19.3 डिवाइडेड बाई RB is 430K plus beta plus 1, that is 51 times RE। RE is 1 kilo ohm, that will be 51K। ठीक है, कितनी वैल्यू आई बताइए।
कैलकुलेट करो, निकालो 19.3 so this comes out to be 40.1 माइक्रोएम्पियर। कुछ मिस्टेक हो तो बता देना आप कैलकुलेशन में। ठीक है, that we have calculated the first parameter. Now calculate the second one, IC. IC को कैसे निकालेंगे? बीटा टाइम्स IB. So that will be equal to 50 times 40.1. 2 milliampere. टू मिली एम्पियर। IC निकल चुका है, then we can calculate the value of VCE. VCE will be equal to VCC minus IC into RC plus RE. ठीक है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERC, तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। IE आप निकाल सकते हो सिंपली एडिंग दीज टू वैल्यूज। ठीक है, वहां पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन ली थी दैट IC इज नियरली इक्वल टू I। तो इसको बताइए, इसमें फिर क्या आपका आंसर आएगा? VCC is 20 minus 2 into RC plus RE, that is 3 kilo ohm. So 20 minus 6 equal to 14 volt. ठीक है, VCE की वैल्यू आ चुकी है, then you can calculate the value of VC. To calculate the value of VC, you have to first calculate the value of VE. VE and VE will be equal to IE times RE. ठीक है, और IE कितना आएगा? IB प्लस IC। तो देख लीजिए आप कितना आपके वैल्यू, IB की वैल्यू है 0.04 मिली एम्पियर एंड दिस इज 2 मिली एम्पियर। तो 2.04 मिली एम्पियर आपका IE की वैल्यू है। तो VE जो है वो आपका 2.04 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप उसको यूज करके यहाँ पे अब निकाल सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू VCE plus VE. So 14 plus 2.04 equal to 16.04 volt. ठीक है,
नाउ दिस 16.04 एमिटर वोल्टेज हमने यहाँ पे निकाल ही ली है 2.04 वोल्ट। इक्वल टू 2.04 वोल्ट। VB निकालो अब। VB will be equal to VBE plus VE. So VBE is 0.7 plus VE is 2.04. So that is how much? 2.74 volt. Now calculate VBC. VBC will be equal to VB minus VC. So VB is 2.74 minus VC is 16.04. ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 13.3 वोल्ट माइनस 13.3 वोल्ट। Yes. Anyone in doubt in this? सर जी वो कैपेसिटर लग गया उनका क्या काम होता है? कैपेसिटर में क्या होगा कि जो हमने अभी जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन विच पर्टिकुलर रीजन द ट्रांजिस्टर विल वर्क। बीटा उसका गिवन है कि आईबी क्या होगा, आईसी क्या होगा, वीसीई कितना रहेगा। उसके बाद जब ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो हमें ये पता लगता है कि ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा, कैसे एम्पलीफाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हम इस हमारा जो मकसद था वो ट्रांजिस्टर का वो ये काम करवाना नहीं था। What our main motive is to apply some input signal and to get amplified the and amplify this particular signal. तो हम ये नहीं चाहते कि इस इनपुट सिग्नल में जो कि एसी सिग्नल है इसमें कोई डीसी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई डीसी कंटेंट भी आ गया साथ में, एक्सटर्नल नॉइस लगा लो या कुछ भी और चीज लगा लो, तो अगर मान लीजिए +-1 वोल्ट की भी डीसी वोल्टेज आती है तो उस +-1 वोल्ट का इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाकी सारे ऑपरेशन के ऊपर होगा। That external DC supply that will change the operating point of the transistor and we do not want to do that. हमें उसको avoid करना है। That's why we have connected one capacitor in the input terminal to avoid any passing of the DC from the input side to the transistor. And similarly, we have connected one capacitor in the output terminal. That also to avoid any passing of the DC content from transistor's output to the main output terminal that we want. Okay. Okay. Yes. Okay. So can you guys now solve these particular type of problems? किसी को कोई डाउट तो किसी को कोई इश्यू तो नहीं आएगा इनको सॉल्व करने में? No, sir. ठीक है, all start with base current at the input side. ठीक है, बेस करंट में केवीएल से निकाल लो या इक्वेशन याद है फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लो। फिर आईसी की वैल्यू निकालो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद बीटा। फिर वीसीई से निकालो आउटपुट में केवीएल निकाल के। अगर ये तीनों चीजें हो गई हैं उसके बाद आपको सिर्फ कुछ चीजें प्लस माइनस करनी है। यू हैव कैलकुलेटेड दी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के ऊपर ही किसी वोल्टेज पूछी हुई है तो आपको बस वही निकालना। ठीक है, वीसीई में वीई ऐड कर दो, वीसी बन जाएगा। वीई आई ई आर ई होता है, वीबी विल बी वीबीई प्लस वीई। बेस और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल निकालना है तो वीबी माइनस वीसी। इस पर ध्यान रखना, कई बार हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वीसी माइनस वीबी लिख देते हैं, हायर में से लोअर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
लेकिन वो नहीं रखना है, जो स्टार्टिंग में पॉइंट है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है जो सेकंड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट मी जस्ट गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो हमारी थर्ड और लास्ट बायसिंग मेथड है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जितनी भी बायसिंग कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं उसमें जो बायस करंट है ICQ और वोल्टेज है हमारी VC, दीज आर ए फंक्शन ऑफ द करंट गेन बीटा। आपकी IC के अंदर तो डायरेक्ट ही आता है बीटा टाइम्स IB, बीटा का फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और VCE के अंदर भी हमारा बीटा का फैक्टर रहता है क्योंकि उसमें भी IC की वैल्यू रहती है। बट जो बीटा है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, वेरी मतलब हाईली सेंसिटिव होता है टू द चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो हमारे बीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, कम होता है तो कम हो जाता है। एंड ड्यू टू दैट सेंसिटिविटी ऑफ द बीटा टू टेम्परेचर, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा इज नॉट डिफाइंड। हम एक्चुअल वैल्यू जो है ना उसको डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर बीटा में चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आपके ऑपरेटिंग पॉइंट्स के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी बायसिंग सर्किट है वो ज्यादा अनस्टेबल हो इन दी व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। So what we want our biasing circuit to be less dependent on beta or independent of beta, या तो बीटा का फैक्टर ही बीटा के ऊपर डिपेंड ही ना करे वो चीज, और अगर करे भी तो थोड़ा सा कम करे, इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिवाइड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में हम वही देखेंगे that if we increase the value of beta and by increasing that value we will compare the change in the collector current in all the three circuits। जो भी हमारे तीनों सर्किट हैं उसमें हम वो उसका इफेक्ट देखें। इसमें तो हमारा इफेक्ट डायरेक्ट ही आ जाता है, अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पे 50 है। ठीक है, एक बार हम इसमें देखते हैं वो आएंगी प्रीवियस वैल्यूज नहीं, नहीं यहाँ पे हम सिंपली लिखा था बीटा टाइम्स IB, तो हमारा IC की वैल्यू आई थिंक 2 मिली एम्पेयर आई। तो बीटा की वैल्यू अगर हमने 50 की जगह 100 कर दिया, डबल कर दिया, तो IB भी आपका डबल ही हो जाएगा डायरेक्टली। एंड वी विल सी दैट इन वोल्टेज डिवाइडर दिस इज नॉट द केस। बीटा की वैल्यू बढ़ भी जाती है बट ड्यू टू सम arrangement of the components in the biasing circuit, there is less effect on the collector current and other parameters also। ठीक है, तो और वैसे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा फिक्स्ड बायसिंग जो है वो उसमें और भी ज्यादा इफेक्ट रहेगा। इसमें हमारा कलेक्टर एमीटर का एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसका थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हम देखेंगे ये तीनों ये के वगैरह। सर ये रेजिस्टेंस स्टेबलाइज कैसे करती है? क्या रहता है ना कि करंट का जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा ये स्टेबलाइज कर देता है, ज्यादा तो नहीं। लेकिन जब यहाँ पे बेस करंट हमने अप्लाई किया था तो इसकी इक्वेशन में देखिए आप, बेस करंट क्या वैल्यू आई थी इक्वेशन, उसमें सिर्फ डायरेक्टली VCC अपॉन RB था। ठीक है, बट नाउ वी हैव VCC अपॉन RB प्लस बीटा प्लस 1 बीटा टाइम। प्लस 1 आई। यस। ठीक है, तो अब इसमें बीटा का फैक्टर भी आ गया है नीचे। अब बीटा का फैक्टर आने की वजह से आपका बेस करंट जो है वो आउटपुट के कुछ टर्मिनल के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया, ट्रांजिस्टर के एक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया। पहले ट्रांजिस्टर का बीटा चाहे कितना भी हो, IB तो उतना ही रहेगा, दैट वाज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन VCC एंड RB। अब वो बीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेस करंट कम हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कम होगी तो बेस करंट ज्यादा हो जाएगा। यस। ठीक है, और वोल्टेज डिवाइडर में हम कुछ और सर्किट बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, वो उसमें देखेंगे। उसमें आप देख पाओगे कि बीटा का फैक्टर इसमें क्या है कि सिर्फ एमीटर के ऊपर थोड़ा सा असर कर पा रहा है, उसमें आपका कलेक्टर करंट के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट कम कर पाएगा, उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा।
अगर हम यहाँ पे देखते थे, इफ यू लुक एट द इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, so that was beta plus 1 times Re. ठीक है, यहाँ पे हमने 430 किलो ओम का रजिस्टर लगाया है, यहाँ पे हमने 1 किलो ओम का लगाया है। ठीक है, अब कहने को हम ये कह सकते थे कि अगर दोनों ही ये रेजिस्टेंस हमारे इफेक्ट में आ रहे हैं तो हम दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन हमें पता है कि उससे कोई काम नहीं होगा, बिकॉज दिस 1 किलो ओम इज इक्वल टू 51 किलो ओम इफ वी लुक एट द इम्पीडेंस फ्रॉम द इनपुट साइड। यस ठीक है, और अगर हम ये भी कर दें कि यहाँ पे 430 की जगह 430 प्लस 51 दैट इज 481 किलो ओम, 481 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाने और हम ये कहें कि अब बेस करंट की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो वो आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो सही आ जाएगी, पर जैसी बीटा की वैल्यू चेंज होगी या कुछ और होगा तो वो इफेक्ट उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप पहले दोनों जो बाइसिंग है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो आपके, नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर एनालॉग सिलेबस। आफ्टर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है बाइसिंग कट, ये करा देंगे हाफ क्लास में, और बाकी हाफ क्लास में कोई भी एक आपको टॉपिक जो है वो डाउट हो वो आप सैटरडे को है। नेक्स्ट क्लास तो अब हाँ अच्छा, अब तो क्लास ही नहीं है इस वीक तो, है ना सर दिवाली। हाँ 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 ओके।